Hello everyone. Okay, you all are doing well, fine, healthy, सब कुछ परफेक्ट चल रहा होगा. एंड प्लीज़ कमेंट बिलो आपकी न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा की प्रिपरेशन कैसी चल रही है. कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ कंट्री, यू कैन कमेंट बिलो. I'll give proper reply or answers to your comments. And thank you so much showing your love through the comments. Okay, chalo. Back to the main point. In this video, I'll talk about. Wait. If you are new in this video or channel, so please try to subscribe this channel. It is totally free of cost. You can comment. You can have this information free of cost. And if you need a one-to-one consultation, you can connect me on WhatsApp. मैं WhatsApp का number mention कर देता हूँ description box में. Okay, come to the main point. So in this video, I'll talk about the New Zealand study visa process step by step for 2025 or 26. Okay. So if you're planning for your student visa in 2026, so I'll try to explain each and everything. So बहुत ही easy हो जाएगा आपको समझने में. And this video is for both of them, like my English viewers and Hindi viewers. So English viewers नहीं समझ में आता, you can connect me one-to-one for one-to-one consultation through WhatsApp. Okay. So first of all, I'll talk about intakes. What are the major intakes available in New Zealand? There are two intakes available in New Zealand. The first one is your February intake 2026 and the another one is July intake 2026. Minor intakes are also available like September and November, but unfortunately there are some universities and few courses are available. So please try to मतलब जा सकते हो but कोशिश करो फरवरी एंड जुलाई के लिए जाओ. दैट विल बी मच बेटर. अवेलेबल है, यू कैन ऑल्सो गो, बट जा सकते हो फरवरी जुलाई के लिए. ओके, लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज. देयर आर 8 यूनिवर्सिटीज इन न्यूजीलैंड. ओके, एंड द फेमस एंड द टॉप यूनिवर्सिटी यू कैन से इज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, विच इज यू कैन से नंबर 1, which you can say number 1 university in New Zealand and 60 to 17th rank in worldwide according to QS World Ranking. Okay. And follow up with the Lincoln, Otago, Waikato, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है. लाइक देर आर 8 यूनिवर्सिटीज़. ओके, and 16 ITPs, which is Polytechnic Institutes. If we are looking out for any vocational programs, so you can go with the ITPs. And generally, the university is focusing on research-oriented programs. Okay, ठीक है. सारी चीज़ sorted है. Everything is sorted till now. Now come to the main thing. If we are looking for level 7 or level 9 courses. Let's talk about what are the levels. Basically, the education system in New Zealand divided into levels, like level 4, level 5, level 7, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, level 9, level 10. So I'll discuss these levels in another video, but अभी थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ. So if you are looking out for the bachelors, this bachelors comes under the level 7. But if you're planning for masters after your bachelors, then it will be counted as a level 9. So what happened if you're choosing level 7 or level 9, you are eligible to get the PSW up to 3 years. Yes, आप eligible हो 3 साल के PSW के लिए. आप वहाँ पे 3 साल तक काम कर सकते हो. And the plus point, generally masters जो न्यूजीलैंड में होता है वो आपका 1 साल का होता है. Okay, so please make sure ये चीज़ ध्यान रखना. Okay, ये तो हुआ लेवल 7 और लेवल 9 के बारे में. ठीक है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन द प्रीवियस वीडियो एंड स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द न्यूजीलैंड इज योर फंड्स. प्लीज ट्राई टू रिजॉल्व एंड सॉल्व योर फंड्स क्वेरीज फ्रॉम योर एंड और थ्रू द एजेंट्स. आप एजेंट की हेल्प लेकर अपने फंड्स को सॉल्व करो एंड ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग regarding to your funds properly to the immigration officer, the source of funds, and please try to align your income to the funds, whatever the funds you are showing, like 30 lakhs, 40 lakhs. वो कोशिश करो आपकी इनकम के साथ वो अलाइन करें.
ठीक है। तो फंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टू फंड्स, यू कैन कमेंट बिलो एंड यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली। मैं आपको फंड्स के लिए प्रॉपरली समझा सकता हूँ, ठीक है। तो फंड्स कौन कौन, सबसे पहले आई वुड लाइक टू से हु इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर यू एट द टाइम ऑफ फंड्स। तो जब फंड्स की बारी आती है तो कौन स्पॉन्सर बन सकता है? तो ओनली ब्लड रिलेटिव कैन बी योर स्पॉन्सर, ओके। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, your mom, your dad, your brother, your sister, your siblings means your real brother and sisters। और अगर आप मैरिड हो तो आपके जो आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो शादीशुदा हो चुके हैं, ठीक है। बट जनरली ब्लड रिलेटिव ही आपको इस पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस, ओके। सो किस फॉर्मेट में आप अपना फंड्स दिखा सकते हो? इन द फॉर्म ऑफ योर एफडी, सेविंग्स, लिक्विड कैश या लिक्विड अमाउंट। और जो आपका फंड्स होना चाहिए जो लिक्विड अमाउंट पे शो कर रहे हो या सेविंग्स पे शो कर रहे हो, इट शुड बी 6 months ओल्ड। लिसन केयरफुली, इट शुड बी 6 months ओल्ड। तो 6 महीने पुराने आपके फंड्स होने चाहिए। और अगर आप इन सबको लेकर चल रहे हो, साथ ही साथ आप एजुकेशन लोन के लिए भी जा सकते हो। ओनली कोलैटरल लोन आर एक्सेप्टेड इन न्यूजीलैंड, नॉन कोलैटरल लोन्स आर नॉट एक्सेप्टेड। मेरी एक प्रीवियस वीडियो है, आप उस पर जाकर देख सकते हो। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सो आफ्टर getting all this, so now come to the documentation part, which is very important. So what are the documents are required while filing your application to the university? So 10th, 12th, graduation, CV. If you have any experience and if you are applying for the masters, you need to show your experience letter or relieving letter and your salary slip फ्रॉम पास्ट 3 months। अगर आप बैचलर्स के लिए प्लान कर रहे हो तो 10th, 12th और CV और आपका पासपोर्ट या IELTS स्कोर या कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम अगर आपने दिया है वो चलेगा। और अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान करो तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ऑल मार्कशीट एंड योर सर्टिफिकेट और योर CV, पासपोर्ट, IELTS, TOEFL, PT, whatever the exam you have given। And after that you will receive the conditional or unconditional offer letter. If you receive the conditional offer letter, it means the universities applies some conditions on you, and the conditions like English proficiency condition, like अगर आपने बस बुक करके अपना एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है तो you will receive the conditional offer letter on the basis of any pendency, right? अगर आपका कोई पेंडेंसी है रिलेटेड टू मार्कशीट और पेंडेंसी है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th में हो या आप प्रिडिक्टेड स्कोर के बेसिस पे आपने अप्लाई किया है, तो जब आपकी मार्कशीट आ जाती है वो पेंडेंसी क्लियर करके आप अनकंडीशनल ऑफर लेटर ले सकते हो। मैंने ये प्रीवियसली एक वीडियो में बता रखा है, अनकंडीशनल कंडीशनल ऑफर लेटर आप देख सकते हो। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, आपकी यू आर इन 6th सेमेस्टर और आपने अप्लाई किया है, देयर इज अ पेंडेंसी ऑफ योर लास्ट सेमेस्टर ऑफ मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट की पेंडेंसी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल रिसीव द कंडीशन। जब ये सारी कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो यू विल रिसीव द अनकंडीशनल ऑफर लेटर। आफ्टर रिसीविंग द अनकंडीशनल ऑफर लेटर देयर आर 2 documents are required, which is medical and PCC. Medical, only chest x-ray is required. PCC, which is police clearance certificate, you have to make it through the passport सेवा केंद्र। जनरली आप जाओ पासपोर्ट की वेबसाइट पे, एक ऑप्शन होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र का, पासपोर्ट सेवा केंद्र में अप्लाई टू PCC के लिए अप्लाई करो, विच इज़ वैलिड फॉर 6 months। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट दिस वीज़ा नहीं आएगा। जैसे फंड्स के लिए मैंने बोला था, इसके लिए भी बोल रहा हूँ। PCC मेडिकल अगर नहीं है तो पासपोर्ट नहीं आएगा। तो प्लीज मेक श्योर ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द वीजा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आफ्टर ऑल दिस, विच इज SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो प्लीज बहुत ही समझदारी से अपना ये डॉक्यूमेंट बनवाना, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज द ओनली डॉक्यूमेंट विच एक्सप्लेन योर प्रोफाइल, योर फंडिंग, योर फैमिली इन ईच एंड एवरीथिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि यू विल रिसीव द कॉल और नॉट, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ
थ्रू द SOP वेरी केयरफुली। कोई प्रॉब्लम है, SOP नहीं बना पा रहे तो मुझे कनेक्ट कर लो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लो, अनकंडीशन ऑफर लेटर के साथ ये PCC, मेडिकल, SOP, फंडिंग, सारी चीज़ें लेने के बाद सैंक्शन लेटर वगैरह आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद यू विल रिसीव योर वीज़ा, ओके। इट विल टेक समवेयर अराउंड 4 to 6 weeks, 1 से 1.5 महीना लगता है आपको वीज़ा आउटकम आने में, ओके। सो if you feel so, if you have any doubts, questions, still you have any questions, you can connect me personally. I have already mentioned my WhatsApp number in the description box, okay. So signing off, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ फालतू के कंसल्टेंट के पास मत जाना जो अनयूजुअल कोर्सेज और अनयूजुअल चीज़ों के लिए आपको पिच करते हैं, जो कि काम नहीं आती, बाद में बहुत आपको सफ़र करना पड़ता है, ओके। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कनेक्ट कर सकते हो मुझे।